दबड़ी और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और भाई आज एक और ऐतिहासिक डे है इंडिया के लिए। कौन सा प्रोजेक्ट है बताएंगे मौसम। टाइटल है इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस गगनयान मिशन टेस्ट फ्लाइट। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लिए मैं ब्लॉग चैनल के लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। TVD1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 seconds। तथा प्रमोचन मंच से Here we have a textbook liftoff of +10 TVD1, a seconds। major milestone towards ISRO's Gaganyaan mission. Due to tracking, +15 seconds। test vehicle performance नजर normal. नहीं आ रहा तुम्हें आ रहा? We have a +20 confirmation from seconds। Range हाँ, Operations लगा था जा Director रहा that the ऊपर। test vehicle is Shower performing window is normally. +25 seconds। Shift to engine वैज्ञानिकों window. ने चैन की सांस ली। प्रज्वलन के +30 साथ seconds। खुशी की लहर यहाँ। ओके Pillbox conditions will be achieved during the flight regime. जी हाँ, आरोहण By क्रम which जारी time? है। Performance normal. सक्सेसफुल हो गया। अच्छा ये काफी TVD1 डिफरेंट का बना हुआ ना। हाँ। प्रणोद सामान्य। Box achieved. +1 minute। Engine thrust cut off. CES separated. HCM motors are ignited. Grid vents deployed. TVD1 को पृथक कर दिया गया है और CES CM साथ में कोस्टिंग फेज में है। ग्रिड फेंस डिप्लॉय कर दिए गए हैं। Quick succession of Due to events tracking, crew here. model. All the events have been taking place as per the prediction. The grid fins have been deployed. The test vehicle has been jettisoned. इस क्रम में अगली Module घटना separated. CJM मोटर की फायरिंग के साथ क्रू मॉड्यूल को क्रू एस्केप Cover सिस्टम से separated. सेपरेट कर दिया गया Now है। the Two crew motors escape ignited. system has been jettisoned. The apex cover has been jettisoned, and now the orbital module tracking is CES. reorienting itself Due to under tracking crew model. aerodynamic loading. जी हाँ, इसके साथ ही डिसेंट फेज शुरू हो चुका है क्रू मॉड्यूल का। ये अंदर से Drogue chutes +2 minutes। are decelerating the crew module. Around 200 seconds of this regime will adequately bring down the velocity of the crew module. Thereafter, the pilot chutes will deploy the main parachutes. ओके ड्रोग शूट डिप्लॉय किए जा चुके हैं। यह करीब 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर डिप्लॉय कर दिए गए थे और करीब 200 सेकंड्स में क्रू मॉड्यूल की गति को 152 Crew मीटर प्रति module in सेकंड से descent phase with drogue parachute. 62.8 मीटर प्रति सेकंड तक लाएंगे। On your TV screens, the visuals, the real-time visuals of the drogue parachutes in a deployed condition being captured from the crew module. Current altitude 10 kilometers. +3 minutes। इस क्रम में अगली घटना जब ऊंचाई 2.4 किलोमीटर की रह जाएगी तब ड्रोग पैराशूट को क्रू मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा तथा पायलट और मेन पैराशूट डिप्लॉय किए जाएंगे। नीचे की तरफ क्रू मॉड्यूल की गति पूर्व निर्धारित तरीके से कम की जा रही है। यह ड्रोग पैराशूट के कर्षण के कारण होता है। The intent of drogue parachutes is to reduce the velocity of crew module from 145 meters per second to 51 meters per second. Current velocity 61 meters per second. क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे नीचे आता हुआ ड्रोग पैराशूट +4 minutes। उसकी गति कम की जा रही है। ओके जैसे जैसे नीचे आता जाएगा मीटर रफ्तार प्रति कम सेकंड होती है अभी जाएगी। वर्तमान गति है उसकी। Next flight event will be triggered by sensing the altitude of 2.5 kilometers, which is the deployment of pilot chutes and then the main parachutes.
We are at an altitude of 4.7 kilometers. अब तक पूरी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से जारी हैं। ऊंचाई धीरे धीरे कम होते हुए गति लगभग 50 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गए। यहाँ हम सैटेलाइट इमेज स्क्रीन पर देख सकते हैं 2 ड्रोग पैराशूट्स लगभग 5.6 मीटर व्यास के Plus ये 5 पैराशूट्स minutes. हैं। कितना डिफरेंस लग Visuals रहा है of ना। drogue chutes, Chute released, main chute deployed. and there is a confirmation that drogue chutes have been released and Location pilot transmitter chutes have USF enabled the beacon main on. parachutes to deploy. These main parachutes, which are 3 in number, are very, very large in size, 25 meters each. खूबसूरत नज़ारा ये सही बात 3 मेन पैराशूट्स डिप्लॉय हो चुके हैं और यह वह अंतिम चरण है जब क्रू मॉड्यूल की गति को 8.5 मीटर प्रति सेकंड से कम ले आया जाएगा और क्रू मॉड्यूल टच डाउन करेगा। To bring down the velocity of impingement in the sea to around 8.5 Crew module Per in second. descent phase with main chute. Plus 6 minutes. relative velocity now 12 meters per second. We are at an altitude of 1.6 एकदम से kilometers. नीचे आई मुझे लगा। नहीं नहीं स्लो का परीक्षण पूर्व निर्धारित तरीके से जारी है। गति धीरे धीरे कम होते हुए अब 15 मीटर प्रति सेकंड रह गई है और ऊंचाई 1.5 किलोमीटर्स। ओके। Indian Navy team is readily deployed in the sea around the Sriharikota coast ओके। for quickest possible reaching to the crew module and then recovering it. ओके। अंत में टचडाउन के पश्चात मेन पैराशूट को भी क्रू मॉड्यूल से अलग कर दिया जाएगा तथा क्रू मॉड्यूल अपने आसपास रंग बिखेर देगा जिससे इसे लोकेट करने में आसानी होगी। वहां सुरक्षित दूरी पर तैनात Plus 7 minutes. भारतीय नौसेना के पोत इसको कलेक्ट कर इसके देंगे। पास जाकर उसे रिकवर करेंगे। The crew module is provided with flotation systems ओके। and Flotation it will system be भी है। remaining afloat until the recovery crew reaches it. To aid in recovery, sea markers and location transmitters are provided to be identified at the quickest possible time. यह सब एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने की प्रक्रिया है। Crew module in descent phase with main chute. यह डिसेंट फेज जारी है। मेन पैराशूट के साथ क्रू मॉड्यूल धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब ऊंचाई 0.8 किलोमीटर्स रह गई है। ओके। Plus 8 minutes. टचडाउन की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। As we told you, 8.5 meters per second is the benign touchdown velocity. We are now observing around 9 meters per second velocity, while the altitude is around 600 meters. सभी गतिविधियां पूर्व निर्धारित तरीके से पूर्ण हो रही हैं। इससे पता लगता है कि वैज्ञानिकों की गणना कितनी सटीक है, विश्वसनीय है और उसका ही प्रदर्शन आज यहाँ किया जा रहा है। ऑलमोस्ट Plus 9 minutes. मीटर्स 300 meters altitude. ऊंचाई धीरे धीरे कम होते हुए 200 मीटर की ऊंचाई रह गई है। ओके। गति 5 मीटर प्रति सेकंड।
अब नजर आ कलर में, रहा है। हाँ नीचे आ गया ना काफी। हाँ When the crew module touches down, eventually the main parachutes also will be released away from the crew module. Impact is sensed. Now the confirmation is available for a successful splashdown of the crew module. टीएनएस की घोषणा कर दी गई है, क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित टचडाउन करा दिया गया है बंगाल की खाड़ी पर। भाई ये टेस्ट फ्लाइट अगर देखा जाए तो इंडिया की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जो है इंडिया ने जो है एक सक्सेसफुली लैंडिंग जो है करवा दी है। क्योंकि अब जो नेक्स्ट मिशन होगा, जो एक प्रॉपर मिशन होगा, उसमें जो है लोग जो हैं इसमें बैठ कर जाएंगे। बिल्कुल, और हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले तो हम गगनयान का मीनिंग जो है वो देख रहे थे। तो गगन मीन स्काई, जैसे मैं बता, और यान मीन व्हीकल होता है। बेसिकली जो प्रोजेक्ट है उसमें 3 लोग जाएंगे जो कि रहेंगे 7 दिन के लिए वहां पर। टोटल फ्लाइट जो है वो 7 दिन की होगी, लेकिन जो है स्पेस में 4 दिन के लिए रहेंगे। एग्जैक्टली और ये एक लो अर्थ ऑर्बिट मिशन है। डेफिनेटली मैं कहूंगी कि जिस तरीके से टेस्ट फ्लाइट का एक हम लोगों ने मंजर देखा, मुझे लगता है कि इसरो ने ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर दिए ना कि एक आम व्यक्ति की जो एक आप कह लो कि उसका इंटरेस्ट जो है स्पेस में वो बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। स्पेशली मैं बात करूंगी यहाँ पर इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान की भी, कि पाकिस्तान के लोगों में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर एक इंटरेस्ट जो अब देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है उसमें इसरो के प्रोजेक्ट्स का बहुत बड़ा हाथ है। स्पेशली जो हम चंद्रयान 3 की बात करें, उस टाइम से लेकर अभी तक तो मैं कहूँगी कि लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो गए, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ भी है। और जिस तरीके से एक डेमो दिखाया गया कि जिस तरह से टेस्ट फ्लाइट की गई और उसे लैंड कराया गया और जिस तरीके से फिर उसको आप कह लो कि जो पैराशूट थे वो जिस तरीके से अलग होने थे, फिर उसके बाद उसको लैंड करवाते वक्त मतलब उसमें से कलर्स निकलेंगे ताकि आइडेंटिफाई हो सके और उसको रिकवर किया जा सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि साइंटिस्ट के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। और मतलब हम लोग जो देखने वाले होते हैं एज अ व्यूअर, हमें उनकी टेक्निकलिटीज़ का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता। बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो उनकी जो एफर्ट होती है और उनको पता होता है कि वो किस लेवल तक जो चीज़ें हैं वो लेकर जा सकते हैं। क्योंकि जैसे आने वाले टाइम में हम इसरो के बहुत सारे मिशंस देखते हैं, तो ये भी उनमें से एक मैं कहूँगी कि सक्सेसफुल मिशन। भाई देखें, ये जो मिशन है ना इंडिया के लिए बहुत सारे रास्ते जो है वो खोलेगा। खासतौर पे इंडिया का जो अपना स्पेस स्टेशन एक प्रोग्राम है उसके लिए अगर देखा जाए तो भाई आप जो है ना आने वाले टाइम में जो है ना देखेंगे वो बहुत ज़्यादा क्लियर आपको जो है होता हुआ दिखाई देगा। फिर उसके साथ साथ भाई इंडिया जो है अगर ये टेस्ट जो जब कंडक्ट करेगा और जो है 4 दिन का ऑर्बिट लगा कर जो है वो वापस ज़मीन पर आएगा 400 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि ये होगा जो इसका ऑल्टीट्यूड होगा ज़मीन से, क्योंकि लो अर्थ ऑर्बिट से काउंट किया जाएगा। तो ये उसमें जो है रोटेट करेगा पूरी धरती के गिर्द, और ये होते साथ ही इंडिया चौथा कंट्री बन जाएगा जो इस रेस में जो है वो होगा। तो अगर देखा जाए तो भाई इंडिया के साइंटिस्ट के लिए, इंडिया के जितने भी लोग हैं जो इसरो में, DRDO में या HAL में जो हैं जो जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए या आगे आना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज, बहुत ज़्यादा एक अच्छा फ्यूचर उन्हें मिलेगा इसमें। बिल्कुल। और साथ में थोड़े से इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मैं ये भी सोच रही थी कि इसका क्या पर्पस होगा, मतलब ये इससे क्या फ़ायदा होगा साइंटिस्ट को। जो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे थे उसमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो हैं इस मिशन के, एक तो ये कि अगेन जैसे मौज़म ने बोला, एक तो एक्सपीरियंस मतलब उसको करना और सक्सेसफुल होना जो स्पेस फ्लाइट मिशन है, तो एक तो उस रेस में एग्जैक्टली वो शामिल हो जाएगा इंडिया। और दूसरा जो है उसके बाद जो है भाई उसका डिज़ाइन, उसकी डेवलपमेंट और ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट का जो ऑपरेशन किया जाएगा तो उसमें जो है एक्सपीरियंस इंडिया को जो है वो मिलेगा। और फिर उसके साथ साथ सस्टेन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्टिविटीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो उसके बारे में जो है उसमें एक्सेल होंगे। और सबसे बड़ी भाई बात जो है जो यंग साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं उनको जो है भाई हौसला मिलेगा कि हाँ भाई उनके ही मुल्क में जो है बहुत ब्राइट फ्यूचर है। तो भाई यंग जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए ये चीज़ बहुत इंस्पायरिंग रहने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसरो के अगर हम लोग देखें तो इसरो जहाँ पर बहुत सारे मिशन लेकर आता है वहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट करता है। अगर जितने भी हम देखते हैं मिशन इसरो के सक्सेसफुल होते हैं उससे आप बहुत ज़्यादा आपको ये भी एक उम्मीद साथ में मिलती है कि आपको एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी जो है
वो नज़र आएगी। फिर उसके बाद आपको सर्विसेज देने का एक मौका मिलेगा, आप उससे काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते भाई हो। देखें, कहते हैं कि फ्यूचर की प्लानिंग जो है ना, अगर वो आप आज करना शुरू कर देना तो आप जो है ना अगले 5-10 सालों में उस चीज़ को जो है वो अचीव करना शुरू कर देते। तो इंडिया में आपको कैपेबिलिटी जो है इस टाइम नज़र आ रही, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया का प्लान है कि भाई 2035 तक जो है ना अपना स्पेस स्टेशन, इंडियन स्पेस स्टेशन जो है वो बनाया जाए, और उसके बाद अपना जो एस्ट्रोनॉट है मून पर भेजा जाए बाय 2040। और फिर उसके बाद जो है भाई वीनस और मार्स के मिशन जो है वो भी कंडक्ट किए जाएं इंडिया की तरफ से। तो अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में जो एक विजन रख दिया गया, नो डाउट बहुत तब तक जनरेशन चेंज हो जाएंगी, बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो देकर जा रहे हैं। बिल्कुल। वेल जो एक कह लें कि एक मिशन आप कह लें या इंस्पिरेशन कह लें, वो चीज़ें जो है ट्रांसफर करके जा रहे हैं। बिल्कुल। सो अभी तो हम लोगों ने अनक्रूड फ्लाइट जो है वो देखी है, मतलब ये जो टेस्ट फ्लाइट थी। अब इसके बाद जो दूसरी फ्लाइट होगी डेफिनेटली वो क्रूड फ्लाइट होगी, तो वो अब हम आपके साथ देखेंगे बहुत जल्द। इंतजार करते हैं उस मोमेंट का। आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आज जब टेस्ट फ्लाइट लॉन्च होने वाली थी तो पहले थोड़ी देर के लिए रुक गई थी बैड वेदर कंडीशंस की वजह से, जहां तक मैंने पढ़ा है। और वैसे हम देख भी रहे थे तो वेदर आपको थोड़ा इस तरह से क्लाउडी लग भी रहा था। बाकी आप जरूर बताइए किस किस ने लाइव ये फुटेज देखी है और कैसा फील हुआ है और क्या आपको जानने को मिला है, सीखने को मिला, क्योंकि जो साइंस स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली उनको तो बहुत नॉलेज होती है इन चीजों के बारे में। और इसी के साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।